और खबर तफसील से हैदराबाद में तेलंगाना जनसमिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने के खिलाफ कांग्रेस सीपीआई तेलंगाना जनसमिति ने हैदराबाद में गन पार्क यादगार शहीदा पर एहतजाज करने की अपील की थी। मुजाहरा करने के लिए कई लीडरान गन पार्क पहुंचे थे, तहम पुलिस ने उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया। इस दौरान पुलिस ने दावा किया कि एहतजाज की इजाजत नहीं है। केटीआर ने आज महबूब नगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की शुरुआत की। महबूब नगर शहर में मयूरी हरितावनम में केटीआर ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। नौतामीर शुदा मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। एसवीएस अस्पताल के करीब बाईपास रोड पर उन्होंने शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महबूब नगर कलेक्ट्रेट के अहाते में केटीआर ने एक्सपोर्ट प्लाजा का भी इफ्तिताह किया। वीरानापेट के करीब 660 डबल बेडरूम्स का भी इस दौरान इफ्तिताह अमल में आया। कोरोना वबा पर कंट्रोल न करने के इल्जामात को केटीआर ने मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपोजिशन को चैलेंज करते हुए सवाल किया कि वह ऐसी कोई रियासत बताए जहां कोरोना पर मुकम्मल काबू पाया गया। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कोरोना के मामले पर अपोजिशन की तरफ से सियासत को उन्होंने गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना की रोकथाम हुकूमत से जुड़ा मसला नहीं है। के तारक रामाराव का कहना है कि अगर अपोजिशन जमातें तामीरी तजावीज़ पेश करती हैं तो उन्हें कबूल किया जाएगा। పరీక్షలు చేయడం లేదనే మాట అర్థరహితం। రెండవది ఇంకా కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కరోనా విషయంలో కేసీఆర్ ఫెయిల్ అంటారు। ఒక ఆయన పత్రికల్లో స్టేట్మెంట్ చూస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది। ఎందుకంటే మరి కరోనా విషయంలో కేసీఆర్ గారు ఫెయిల్ అంటే మీరు కేవలం కేసుల సంఖ్య చూసి మరి పాస్ అయింది ఎవరో ఒకరు చూపెట్టండి నాకు ప్రపంచంలో। ఏదన్నా ఒక నాయకుడు ఏదన్నా ఒక ప్రభుత్వం ఎక్కడన్నా గొప్పగా చేసినారు ఫలానా పని దానివల్ల తగ్గింది, ఇదేదో ప్రభుత్వ సమస్యలాగా ప్రభుత్వమే తెచ్చిన సమస్యలాగా మాట్లాడడం అనేది బాధ్యత రాహిత్యం। ఈ సమయంలో చేయగలిగితే మాట సాయం చేసి ఆత్మస్థైర్యం పెంచి మంత్రి గారితో మాట్లాడి లేదా సిబ్బందితో మాట్లాడి ఎవరి శక్తి మేరకు వాళ్ళు తోడ్పడాలి, ఎవరి శక్తి మేరకు వాళ్ళు కృషి చేయాలి। కానీ ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడి పనిచేస్తున్న వారి నైతిక స్థైర్యం దెబ్బతీయడం, ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడి పరిగెత్తుతున్న వాళ్ళ కాళ్ళల్లో కట్టెలు పెట్టడం ఇది మంచి విధానం అయితే కాదు। విమర్శలే చేయదలుచుకుంటే వారికంటే 100 ఇంతలు మేము చేయగలుగుతాం। మేము కూడా అనొచ్చు మరి భారతదేశం ఈరోజు 3వ స్థానంలో ఉంది కరోనా విషయంలో, అంటే మరి ప్రధానమంత్రి ఫెయిల్ అయిందా మేము అనాలనా? చాలా బాధ్యత రహితమైన మాట ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఇది పదవులతో సంబంధం లేని అంశం ఇది। ఈరోజే చూసినారు మీరు రష్యాలో ఏదో వ్యాక్సిన్ వచ్చిందట, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అయినాయట, కొన్ని అక్కడక్కడ సిల్వర్ లైనింగ్ అరౌండ్ ద డార్క్ క్లౌడ్ అన్నట్టు అక్కడక్కడ కొన్ని ఆశావహమైన మాటలు వస్తూ ఉన్నాయి। చాలా సంతోషం। మందో వ్యాక్సినో ఇంత జల్ది వస్తే అంత మంచిది, కానీ అది వచ్చేదాకా జాగ్రత్తగా ఉండక తప్పని పరిస్థితి। అట్లని చెప్పేసి మొత్తం బంద్ పెట్టుకొని ఇళ్లలో కూర్చోలేని పరిస్థితి। ఈరోజు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు మమ్మల్ని కూడా, మీరు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు, పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రాంలు ఎందుకు పెడుతున్నారని అడుగుతున్నారు। ఇప్పుడు అందరినీ అన్ని పనులు చేసుకోమని చెప్పి మేము ఇళ్లలో కూర్చుంటే బాగుంటుందా? మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు మేమందరం ఇళ్లలో ఉండిపోయి మీరు మాత్రం పని చేయండి, మేము మాత్రం ఇళ్లలో కూర్చుంటాం భద్రంగా ఉంటామంటే బాగుంటుందా? మా పని మేము చేయాలి, ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి। కరోనాతో సహజీవనం అనేది తప్పదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఎవరి ఆలోచన వారు చేసుకుంటూ ముందుకు పోయే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने पर लगाई गई रोक में तौसी कर दी है। 15 जुलाई तक सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई रुकी रहेगी। इस मामले में रियासती हुकूमत ने आज हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ दाखिल करदा मफाद आम्मा की 2 अर्जियों पर अदालत समाअत कर रही है। अर्जी गुजारों ने इस मामले में काबीना में फैसला न लेने का मामला उठाया। बुध को इस मामले में आइंदा समाअत काफी अहम रहने का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने अदालत को बताया कि म्युनिसिपल सॉलिड एक्ट के तहत ही इन्हदामी कार्रवाई की गई। हुकूमत का कहना है कि आवाम को मुश्किलात न हो, इसके लिए तमाम कवायद पर अमल आवरी करते हुए इमारतों के इन्हदाम का काम किया जा रहा है। हुकूमत ने अदालत में दावा किया कि सियासी मकासद के तहत ही इमारत की इन्हदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा की जा रही है। పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు అదేవిధంగా చెరుకు సుధాకర్ గారు వేసిన పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిటిషన్ను ఎలాబరేట్గా విచారించింది। ప్రభుత్వం కౌంటర్ ఫైల్ చేసింది।
అదేవిధంగా మేము అడిషనల్ మెటీరియల్ పేపర్స్ కూడా ఫైల్ చేశాము. కాబట్టి క్యాబినెట్ ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకోలేదు అనేది మా కంటెన్షన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఫైనల్ డిసిషన్ను కోర్టు ముందు సబ్మిట్ చేయమని చెప్పింది. అదేవిధంగా మమ్మల్ని రిప్లై ఫైల్ చేయమని చెప్పేసింది. तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जी नरेंद्र यादव कोरोना के नतीजे में इलाज के दौरान खानगी दवाखाने में चल बसे. यादव ने हाल ही में कोरोना मुतासरीन के मफाद में कई प्रोग्रामों में शिरकत की थी. कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि यादव की मौत से पार्टी डिसिप्लिन लीडर से महरूम हो गई है. हैदराबाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद किया गया. अनजानी यादव के अफराद खाना भी कोरोना मुतासर बताए गए हैं. एक हफ्ते में कोविड के चलते कांग्रेस के 2 लीडरों की मौत हो चुकी है. इससे कबल सीनियर लीडर सिराजुद्दीन भी कोरोना के नतीजे में इंतकाल कर गए. हैदराबाद में हालिया अरसे में बीजेपी का भी एक लीडर कोरोना वबा की नजर हो चुका है. कोरोना वबा के पेश नजर हैदराबाद में गड्डी नारम की फ्रूट मार्केट बंद कर दी गई है. कोत्तापेट के आसपास की आबादियों के मकीनों की तरफ से एतराज के बाद ये कदम उठाया गया है. मार्केट कमेटी ने कहा है कि वो ताजिरों, किसानों और फ्रूट फरोख्त करने के पेशे से जुड़े लोगों को लाहक सेहत के खदशात के मद्देनजर ये कदम उठा रही है. हयातनगर के कोहरा मंडल में फ्रूट व्यापारियों के लिए इंतजाम किया गया है, लेकिन सहूलियात न होने की वजह से वहां जाने से हर शख्स गुरेज कर रहा है. हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है. आज से पहर से हैदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो गया और बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा. महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत भर में जबरदस्त बारिश की पेशगोई की है. बारिश के दिनों में हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्के के काला पत्थर इलाके के मक्का कॉलोनी के मकीनों का जीना दूभर हो जाता है. नाले का पानी तमाम घरों में दाखिल हो जाता है और मामूलात जिंदगी उथल पुथल होकर रह जाती है. यहां तक कि इबादतगाह में भी पानी भर जाने के नतीजे में हालात काफी बिगड़ जाते हैं. देखिए रिपोर्ट. हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्के में वैसे तो मसाइल का अंबार है, ताहम कुछ अरसे से काला पत्थर मक्का कॉलोनी में बारिश के दिनों में नाला कहर ढाता है. घरों में गंदा पानी घुस जाता है. कई लोगों ने इस तरह की सूरत हाल के चलते बारहा नुकसान उठाया है. इलाके के 40-50 घरों के लोग अरसे से ऐसी सूरत हाल झेल रहे हैं. तेज बहाव से आने वाला पानी कई बार गाड़ियों को बहा ले गया. इसी असना में एक मकीन की मौत भी हुई, लेकिन अवामी नुमाइंदे और बलदी अफसर टस से मस नहीं हुए. इलाके में मशहूर सकलैन मस्जिद के अकब से नाला बहता है. आधे घंटे तेज बारिश हो जाए तो गंदी नालियों और ड्रेनेज का पानी मस्जिद में भी जमा हो जाता है. इन तस्वीरों से आम दिनों और बारिश के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है. मकामी कॉरपोरेटर और मजलिसी लीडर मोबीन से इलाके के लोगों ने बारहा अपीलें की, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ. मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी का मकान इस इलाके से थोड़ी दूर के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी इलाके के मकीनों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं रखते. तेगलकुंटा, नवाब साहब कुंटा और किंग कॉलोनी के अलावा विट्टेपल्ली का सारा गंदा पानी इस नाले के जरिए ही मूसा नदी में शामिल होता है. नाले के रास्ते में पड़ने वाले इलाके में बारिश का पानी तबाही मचाता आ रहा है. मकामी रुकन असम्बली मौज़म खां भी इस मसले की जानिब तवज्जो देने से गुरेज करते आ रहे हैं. मकामी लोगों ने बताया कि कुछ साल कबल नाले का रुख मोड़ने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है. लोग नाक़िस मनसूबाबंदी को तमाम मसाइल के जड़ करार दे रहे हैं.
नाले से पानी के बेहतर अंदाज में निकासी के लिए एक बेहतर और मौसर मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए जल थल के मसले से लोगों को निजात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सरकारी अराजियात से रेत, लाल मिट्टी और कंकर चोरी के इल्जाम में पुलिस ने 19 अरकान की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग चोरी का माल ताजरों को बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक अपने फायदे के लिए ये लोग सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस ने 13 ट्रक, 12 मोबाइल फोन और एक प्रोक्लिन जब्त कर ली है। ये इतला पर मलकाजगिरी पुलिस ने जवाहर नगर पुलिस के साथ जाए वारदात पर छापा मारा। इतवार की सुबह थम्मेपल्ली में यह वाकया रुनुमा हुआ। सेक्रेटरीट में मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ बीजेपी लीडरों ने पुलिस से शिकायत की। सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एमएलसी रामचंद्र राव ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने का इल्जाम लगाकर खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने मांग की है। 10వ తారీఖు నాడు సెక్రటేరియట్ తొందరపాటు చర్యగా భారతీయ జనతా పార్టీ భావించినప్పటికీ కూలగొట్టేటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఆ సెక్రటేరియట్ ప్రాంగణంలో నల్లపోచమ్మ దేవాలయం కూల్చివేత ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉంది। हमारे कौमी तराने जनगण मन को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की काविशें होती रही हैं। एक फनकार की तरफ से मिट्टी के घड़ों से मौसीकी पैदा कर कौमी तराना पेश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे आंध्र की खबरों का।